So, good ठीक afternoon, good morning, good evening to everyone. Once again, welcome to our EpiWin तो webinar. सभी को गुड आफ्टरनून, Thank you गुड for मॉर्निंग, गुड joining, इवनिंग। particularly those of you joining from far away एक बार at फिर later हमारे time एपिपेन zones. वेबिनार में आपका स्वागत है। Thank you for joining this webinar on the global शामिल update होने on के लिए COVID-19, धन्यवाद, विशेष रूप से आप में managing से the जो दूर से risks या देर से from या new शुरुआती समय variants. में शामिल हो We रहे हैं। have today experts on this field कोविड-19 पर available वैश्विक with us अपडेट पर ample इस time वेबिनार में to शामिल होने, ask नए वेरिएंट से questions as जोखिमों well. का प्रबंधन For करने those के of लिए you who are धन्यवाद। new आज to हमारे EpiWin पास though, इस क्षेत्र के this is the विशेषज्ञ हैं WHO और आप Information पर्याप्त Network समय for के कारण सक्षम epidemics for होंगे। आप science में and से उन knowledge लोगों के लिए भी translation in प्रश्न health पूछ सकते हैं emergencies. जो ईपीआई With विंडो में these नए हैं। EpiWin webinars and the associated यह EpiWin विज्ञान और ज्ञान digest अनुवाद slide और sets, स्वास्थ्य आपात our स्थितियों goal के is लिए, to महामारियों translate के लिए science WHO सूचना in नेटवर्क है। इन accessible, एबोएन वेबिनार understandable और and संबंधित relevant एपिपेन ways डाइजेस्ट स्लाइड so सेट that के people साथ can take हमारा more लक्ष्य विज्ञान का informed अनुवाद करना actions है, and सुलभ, decisions समझने during योग्य health और emergency प्रासंगिक तरीकों से, in health emergency preparedness and response. ताकि लोग So welcome आपातकाल के once again. दौरान सबूत, Today सूचित we have कार्रवाई a और निर्णय great ले panel. सकें। We have Dr. स्वास्थ्य Sylvie Briand, आपातकालीन तैयारी और Director for प्रतिक्रिया में Epidemic and Pandemic Preparedness and Prevention at WHO. And this was really her vision. She's a great visionary. We also have तो एक बार a फिर आपका very स्वागत है। आज familiar हमारे face पास for एक महान COVID, पैनल है। Dr. हमारे Maria पास Van WHO में Kerkhove, who is महामारी the और Unit महामारी Head for तैयारी और Emergent रोकथाम के Diseases and निदेशक डॉक्टर Zoonosis. सिल्वी ब्रायंट है We और यह have वास्तव में Professor उनका Anne दृष्टिकोण था। वह एक महान Bortwaka दूरदर्शी है। of the हमारे National पास भी है कोविड Institute के for लिए एक बहुत ही Communicable परिचित Diseases चेहरा in डॉ South मारिया वैन Africa, किरको, जो who is उभरती also बीमारियों the और Vice जूनोसिस के लिए Chairman of यूनिट the हेड है। Technical Advisory Group for Virus Evolution for SARS-CoV-2. We have Dr. Meera हमारे Chand, who's पास the दक्षिण Deputy अफ्रीका में Director संचारी रोगों के to लिए the World राष्ट्रीय Health संस्थान के Security प्रोफेसर और Agency, बर्क हैं, जो and वायरस विकास also के लिए another तकनीकी सलाहकार समूह के member of उपाध्यक्ष भी हैं। the Technical Advisory सार्स Group कोवी for 2 के लिए Virus हमारे पास Evolution, है डॉक्टर मीरा and चांद, जो Dr. यूके हेल्थ Lorenzo सिक्योरिटी एजेंसी Sibisi, में डिप्टी डायरेक्टर Technical हैं, Officer for और Emerging एक और भी Diseases and वायरस विकास के Zoonosis. लिए तकनीकी सलाहकार समूह के Without सदस्य, further ado, I will hand over to और Sylvie डॉक्टर Briand. But लोरेंजो just सिबिसी, before that, उभरती a बीमारियों few और जूनोसिस के housekeeping. लिए तकनीकी This अधिकारी। webinar आगे is की being हलचल के बिना recorded and interpreted in 7 languages, in Spanish, French, मैं सिल्वी ब्रायन को सौंप दूंगा, लेकिन Russian, उससे ठीक पहले and इस रिकॉर्ड को कुछ हाउसकीपिंग करें। इस वेबिनार को 7 भाषाओं में रिकॉर्ड और व्याख्या in किया जा रहा है, AI स्पेनिश में, फ्रेंच, interpretation in रूसी और Chinese, Arabic, and Hindi and Bengali. So, और चीनी if अरबी you में would like एआई to व्याख्या में और ask हिंदी और questions, बंगाली। please put your questions in इसलिए the Q&A and please introduce yourself in chat यदि because we आप would love to प्रश्न know where पूछना you've चाहते come हैं तो from. कृपया प्रश्नोत्तर में And अपने प्रश्न रखें finally, if you would like a और certificate, कृपया please चैट में अपना respond परिचय to the दें, क्योंकि survey हम at यह the end जानना of the पसंद webinar. करेंगे कि आप So, कहां से so आए much हैं। for और अंत housekeeping. में, यदि Over आप to एक Dr. प्रमाण Sylvie पत्र Briand. चाहते हैं तो Welcome, कृपया Sylvie, and the वेबिनार floor के is अंत yours. में सर्वेक्षण का जवाब दें। So thank you very much, Supriya, and हाउसकीपिंग के लिए बहुत कुछ डॉक्टर सिल्वी EpiWin is ब्रायन को also सौंपा a गया। आपका teamwork, स्वागत and you है see सिल्वी, और different मंजिल faces तुम्हारी है। बहुत बहुत contributing to धन्यवाद different ब्रायन। और webinars, and I just would like to highlight this as well. But for today, I would like to wish you first good morning, good afternoon, मेरा and मतलब है good evening. कि अगर आप And जीतते हैं thank you तो all यह for भी एक joining टीम us वर्क है, today और for आप this एक अलग EpiWin चेहरे देखते webinar. हैं जो It's विभिन्न always a वेबिनार में great योगदान दे pleasure रहे to हैं, welcome और मैं you, इसे भी and उजागर करना particularly चाहता today हूँ। for this इसलिए लेकिन new आज के लिए discussion मैं on आपको पहले ever-evolving शुभकामनाएं देना topic चाहता of हूँ। सुप्रभात, COVID-19 गुड आफ्टरनून और variants. गुड इवनिंग, और इस एपिक As विन we वेबिनार के know, लिए आज today's हमारे साथ जुड़ने के discussion लिए आप revolves सभी का around the धन्यवाद। various कोविड-19 forms of वेरिएंट के लगातार SARS-CoV-2 विकसित हो रहे virus. विषय पर इस नई Currently, चर्चा के we लिए found आपका स्वागत करना ourselves हमेशा within this खुशी की बात होती Omicron है। जैसा variant. कि आप जानते हैं, आज की However, चर्चा साउथ within कोस्ट the 2 वायरस के Omicron विभिन्न रूपों family, के इर्द if गिर्द I घूमती है। may वर्तमान में qualify हमने it खुद that को way, and ओमिक्रॉन Anne वेरिएंट will से tell me निपटते if हुए I'm पाया। wrong, but in this family of Omicron, there are like different branches. So, हालांकि and we ओमिक्रॉन name परिवार के them भीतर, with अगर मैं इसे इस numbers तरह and से अर्हता letters, so प्राप्त it कर might सकता feel हूं, और very मुझे बताऊंगा complicated, कि but क्या मैं गलत the हूं, लेकिन expert today will explain everything about this. But we have XBB 1.5, SBB 1.16, EG5, BA2, and different descendants ओमिक्रॉन के इस परिवार from में बहुत this सारी अलग अलग variant. शाखाएं हैं, और हमने उन्हें संख्याओं और अक्षरों Omicron, के साथ नाम दिया है, तो यह बहुत fortunately, जटिल is लग सकता है, less लेकिन वे उम्मीद virulent करते हैं than कि the आज इस बारे में ancestor सब कुछ समझा strain देंगे। that लेकिन हमारे emerged पास in XB 1.5 है, 2019 and SB spread in 1.16, EZ 2020 5, around the BA2 और world. विभिन्न वंशज। इस संस्करण से तो However, ओमिक्रॉन it's crucial to acknowledge that even सौभाग्य से though Omicron 2019 may में be उभरे और less 2020 virulent, में दुनिया भर some में फैले पैतृक individuals तनाव की still तुलना can में कम develop वायरल है। severe फिर भी यह disease स्वीकार करना when महत्वपूर्ण है exposed, कि for भले ही instance, to a ओमिक्रॉन high कम हिंसक हो density of सकता है, कुछ virus व्यक्ति अभी भी or गंभीर due to बीमारी special विकसित कर risk सकते हैं।
उदाहरण के लिए, जब वायरस के उच्च घनत्व के संपर्क में आते हैं या मधुमेह जैसे विशेष जोखिम कारकों के कारण या कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और विशेष रूप से बुजुर्गों के बीच। इसलिए ओमिक्रॉन के साथ हमारा कुशन बना रहना चाहिए। भले ही इसकी विशेषताएं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसे पिछले परिसंचारी वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक हो, पुरातनता के बाद से मानवता दोनों मैक्रोस्कोपिक दुनिया से मोहित हो गई है, क्योंकि हम सितारों को देखते हैं और सूक्ष्म दुनिया हमेशा की तरह मैं उन्हें समझना चाहता था। डेमोक्रिटस ने ईसा से पहले 400 से पहले परमाणुवाद के सिद्धांत की शुरुआत की थी, जो मानता है कि पदार्थ अविभाज्य और शाश्वत परमाणुओं से बना है। फिर भी यह केवल हाल के दिनों में है जब प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन परमाणुओं को देखा और अध्ययन किया गया है। इसी तरह जीव विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से जीनोमिक अनुक्रमण जैसी नई तकनीक के साथ हम सूक्ष्म दुनिया में गहराई से गोता लगाने में सक्षम हैं। आज हमारे पास वायरस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां हैं। महामारियों से निपटने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वायरस को समझें, यह विकास है। और वैक्सीन जैसे उपकरणों को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए मानवता के लिए इसका व्यवहार महत्वपूर्ण है। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए उपचार और परीक्षण। जैसे जैसे वायरस विकसित होता है, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे उपकरण अभी भी उपयोगी है। मुझे महामारी के पहले सप्ताह अच्छी तरह याद है, जब हमें पता चला कि कोविड-19 के पीछे का अपराधी कोरोना वायरस था। उस समय मैंने कुछ वायरोलॉजिस्ट से पूछा कि क्या उन्हें विश्वास है कि यह वायरस तेजी से विकसित होगा, और यह इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ मेरे अनुभव पर आधारित था, जो कई हैं और अक्सर पुनर्वर्गीकरण से गुजरते हैं। एक विकास और उस समय उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि SARS-CoV-2 तेजी से विकसित हो सकता है। हालांकि जैसा कि हमने देखा है, कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस वास्तव में तेजी से विकसित होने की क्षमता रखते हैं। शायद यह मानव आबादी के बीच उनके गहन परिसंचरण के कारण है, या शायद हमारी बेहतर नैदानिक क्षमताओं का एक परिणाम, जिससे हम उनके परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझ सकें। और वायरल आबादी की गतिशीलता ध्यान दिए बिना उन वायरस की निगरानी जारी रखना अनिवार्य है। उनकी विकसित क्षमताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और समझें कि वे हमारे उपकरणों से कैसे बच सकते हैं। यह ज्ञान हमें बीमारी को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करेगा और भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी करें। अब मैं आपको शीर्ष पायदान विशेषज्ञों के एक पैनल से परिचित कराने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो वायरस की पेचीदगियों में जाएंगे। यह संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव है और हम इसे प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए जिन रणनीतियों को नियोजित कर सकते हैं। और एक साथ हम इस चुनौतीपूर्ण इलाके को ज्ञान, लचीलापन और एक स्वस्थ और सुरक्षित दुनिया के साझा लक्ष्यों के साथ नेविगेट करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद और चलो शुरू करते हैं खोज और तैयारी की इस यात्रा पर एक साथ। धन्यवाद सुप्रिया, तुम्हारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वी। हम कोविड के साथ कहाँ हैं और हम इसके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ दृश्य को इतनी अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए अब मैं डॉक्टर मारिया वैन किरकोव को फर्श सौंपता हूँ, जो हमें वैश्विक स्थिति का अवलोकन देंगे। उसके बाद प्रोफेसर एन वॉन गॉटबर्ग होंगे, जो आपको समझाएंगे। जोखिम मूल्यांकन उपकरण, और फिर हम अपने सभी विशेषज्ञों के साथ एक पैनल चर्चा और प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके पास मारिया। धन्यवाद सुप्रिया, और मंच स्थापित करने के लिए डॉक्टर सिल्विया ब्रायन को धन्यवाद। इसलिए मैं एनी और मीरा और लोरेंजो के साथ जुड़ने के लिए वास्तव में रोमांचित हूँ, जो वायरस इवोल्यूशन के लिए हमारे तकनीकी सलाहकार समूह में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। And Lorenzo Subisi, who's part of my team, so fortunate to have
मैं प्रस्तुति शुरू करने जा रहा हूं और फिर मैं इसे प्रोफेसर वॉन गॉटबर्ग को सौंपने जा रहा हूं, जो दक्षिण अफ्रीका से हमारे TAGV सह अध्यक्ष हैं। मीरा चैन, डॉक्टर मीरा चैन के लिए विशेष धन्यवाद, जो टैग PE के सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन वायरस को समझने के मामले में यूके और दुनिया में गंभीर रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लोरेंजो सिबिसी, जो मेरी टीम का हिस्सा है, जो टैग बी के समन्वय का वास्तव में अविश्वसनीय काम करता है। तो इसके साथ मैं आपको वर्तमान स्थिति का अवलोकन देने जा रहा हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति का यह अवलोकन बहुत संकीर्ण रूप से केंद्रित है। यह वास्तव में महामारी विज्ञान परिसंचरण, स्वयं भिन्नता और प्रभाव पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो हम कहाँ हैं? यह स्लाइड सेट उन सभी कार्यों को कवर नहीं करता है जो WHO नैदानिक प्रबंधन के संदर्भ में कर रहा है, संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण, वेंटिलेशन, टीकाकरण वगैरह आदि के संदर्भ में। तो मैं बस आपको यह बताने के लिए फ्रेम करना चाहता हूँ कि हम इन अन्य विषयों और किसी अन्य समय के लिए अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में वायरस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि कोविड के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 5 मई 2023 को हटा दिया गया था। कोविड-19 के इस संकट के दौर में 3 साल से अधिक समय तक रहने के बाद ऐसा किया जा रहा है। और जब महानिदेशक ने घोषणा की कि कोविड का आपातकाल समाप्त हो गया है, तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न खतरा नहीं है। तो यह नवीनतम EPI वक्र है जो हमारे पास है, और आप बाईं ओर जो देख सकते हैं वह मामलों की रिपोर्ट की गई संख्या को देखते हुए EPI वक्र है महामारी की शुरुआत के बाद से। और अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि कोविड चला गया है। ऐसा लगता है कि वायरस अब प्रसारित नहीं हो रहा है। दाईं ओर पिछले कई महीनों का झटका है, और हम अभी भी लाखों मामलों की रिपोर्ट देख रहे हैं। दूसरा, WHO और ये संक्रमण और पुनः संक्रमण है, लेकिन हमारे पास मामलों पर 234 में से केवल 93 देशों और क्षेत्रों से डेटा आ रहा है। मौतों के संदर्भ में हमने समय के साथ कोविड-19 से होने वाली मौतों में तेज गिरावट देखी है, और यह कई कारकों के कारण है, जिसमें जनसंख्या स्तर की प्रतिरक्षा में वृद्धि, नैदानिक देखभाल तक पहुंच, बेहतर निदान और महत्वपूर्ण रूप से संक्रमण से और टीकाकरण से जनसंख्या स्तर की प्रतिरक्षा में वृद्धि शामिल है। लेकिन अभी WHO के पास 234 देशों के क्षेत्रों में से केवल 40 देशों से मौतों का डेटा है। यह कुछ लोगों को सुझाव दे सकता है कि बाकी दुनिया मामलों को नहीं देख रही है और मौतें नहीं देख रही है, और हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। हम जानते हैं कि वायरस सभी देशों में घूम रहा है, लेकिन हमारे पास अभी अच्छी दृश्यता नहीं है कि वास्तव में कितना परिसंचरण हो रहा है। infections, which is in the billions. In terms of deaths, more than 6.9 million deaths have been reported to WHO. संचयी मामलों के संदर्भ में WHO को 770 मिलियन से अधिक मामलों की सूचना दी गई है, जो हम जानते हैं कि संक्रमण की वास्तविक संख्या का सकल अनुमान है, जो अरबों में है। मौतों के संदर्भ में WHO को 6.9 मिलियन से अधिक मौतों की सूचना दी गई है, और ऐसे अनुमान है जो सुझाव देते हैं कि यह 3 गुना अधिक हो सकता है। इसलिए यह वायरस अभी भी हमारे साथ बहुत अधिक है, यह अभी भी घूम रहा है, और यह अभी भी संक्रमण, अस्पताल में भर्ती और मृत्यु का कारण बन रहा है। From the small number of countries that are providing this, we do see some increases in deaths in some regions, and this is quite variable. It does take time to get reports on deaths because it takes time for the patient to reach their outcome. We can say with certainty that the impact of COVID-19 has reduced since its peak, but there are still a large number of individuals who are infected. जिन तरीकों से हम रुझानों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक समय के साथ देखना और पिछले 28 दिनों या पिछले महीने या उसके बाद के बदलाव को देखना है, और हम इसे WHO क्षेत्र द्वारा विभाजित करते हैं। आप यहाँ सीमित जानकारी के साथ देख सकते हैं जो हमारे पास उन देशों की छोटी संख्या से है जो इसे प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ क्षेत्रों में मौतों में कुछ वृद्धि देखते हैं, और यह काफी परिवर्तनशील है। मौतों पर रिपोर्ट प्राप्त करने में समय लगता है क्योंकि रोगी को अपने परिणाम तक पहुंचने में समय लगता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कोविड-19 का प्रभाव अपने चरम के बाद से कम हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो संक्रमित हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, जिन्हें उन्नत देखभाल की आवश्यकता है, जो पोस्ट कोविड स्थिति से पीड़ित हैं और जो मर रहे हैं। और हमें लगता है कि हमारे सदस्य राज्यों के साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए निगरानी और रिपोर्टिंग में गिरावट की पृष्ठभूमि में हम वैश्विक इन्फ्लुएंजा प्रणाली संकट का भी उपयोग कर रहे हैं। तो यह वैश्विक इन्फ्लुएंजा निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली है जो न केवल इन्फ्लुएंजा बल्कि SARS-CoV-2 वायरस जो COVID-19 का कारण बनती है को कवर करने के लिए दायरे में विस्तार हुई। और यह देखते हुए कि हम न केवल फ्लू पर रिपोर्ट करते हैं बल्कि हम कोविड और फ्लू दोनों पर रिपोर्ट करते हैं। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण है जो वैश्विक इन्फ्लुएंजा कार्यक्रम से डैशबोर्ड से आते हैं, उन नमूनों को देखते हुए जिनका परीक्षण किया जाता है और उनमें से कितने सकारात्मक परीक्षण कर रहे हैं। और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि यह 12 से 14% के बीच कहीं भी है। उन व्यक्तियों की प्रतिशत सकारात्मकता जो सेंटिनल और गैर सेंटिनल आधारित प्रणाली के माध्यम से PCR परीक्षण
परीक्षण करवा रहे हैं। यह अभी भी काफी अधिक है, इसलिए हम जानते हैं कि वायरस फैल रहा है, लेकिन हम इसका पता लगाने और उस पर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं हैं, जितना हम चाहते हैं। हम प्रभाव पर अधिक ध्यान देने के लिए स्थानांतरित हो गए हैं और हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और हमें अपने सदस्य राज्यों से जिस पर मदद की आवश्यकता है वह अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू में प्रवेश के बारे में जानकारी है। तो यह तालिका एक और उदाहरण है कि हम इन रुझानों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं। और आप उस निचली पंक्ति पर नीचे क्या देख सकते हैं? यदि आप मेरे कर्सर को उस जगह देख सकते हैं जहां यह वैश्विक कहता है, हमारे पास 234 में से केवल 22 देश हैं जो अस्पताल में भर्ती होने पर डेटा प्रदान करते हैं। इसमें से अधिकांश WHO को रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय वेबसाइटों से आ रहा है जिसे हम खींच रहे हैं, और उस डेटा का अधिकांश हिस्सा अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। And we provide those opportunities in the colder months. On the right-hand side is ICU admissions. These are very small numbers. Very small number of countries that are providing this. और जो देश रिपोर्ट कर रहे हैं वे वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर यह समय के साथ परिवर्तनशील है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु के मौसम से आगे है, जहां हम लोग घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, जहां खराब वेंटिलेशन होता है, जहां हवा के माध्यम से संचालित रोगजनक लाभ उठाते हैं और वास्तव में अधिक कुशलता से प्रसारित करने के तरीके ढूंढते हैं, और हम ठंड के महीनों में उन अवसरों को प्रदान करते हैं। दाईं ओर आईसीयू में भर्ती है। यह बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या में देश हैं जो इसे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जब हम वृद्धि देखते हैं तो यह चिंताजनक है। यह सिर्फ समय के साथ एक ही प्रकार के डेटा को देख रहा है। तो हम हैं। तो आप वहां शीर्ष ग्राफ से देख सकते हैं कि हमने उत्तरी गोलार्ध में उन गर्मियों के महीनों में अस्पताल में भर्ती होने, साप्ताहिक रूप से अस्पताल में भर्ती होने की सूचना में वृद्धि देखी है, और फिर यह काफी चिंताजनक है। हो सकता है कि हम एक शिखर पर थोड़ा सा पहुंच गए हों, लेकिन हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों तक डेटा काफी सीमित है। यह आमतौर पर WHO में आने वाले डेटा के संदर्भ में एक बैकलॉग होता है। हमारे पास वायरस परिसंचरण और इसके प्रभाव पर उतनी दृश्यता नहीं है। तो आज आपको एक साथ लाने में मुख्य बिंदुओं में से एक स्वयं विचरण के बारे में बात करना था। इसलिए हमने कई बार यह कहते हुए सुना है, जितना अधिक वायरस फैलता है उतना ही अधिक अवसरों को बदलना पड़ता है। और हम दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जो वायरस इवोल्यूशन टैग वी के लिए हमारे तकनीकी सलाहकार के साथ निगरानी और अनुसंधान में काम कर रहे हैं, नए वेरिएंट का तेजी से पता लगाने के लिए इन वेरिएंट के संचलन की निगरानी कर रहे हैं, और उन लोगों की निगरानी करने के लिए जिन्हें हम जानते हैं कि प्रचलन में है। वर्तमान में हम निगरानी कर रहे हैं। हम रुचि के 3 वेरिएंट XB.1.5, XB.1.16 और ET.5 को ट्रैक कर रहे हैं। ये सभी ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा है। हमारे पास निगरानी के तहत कई बेरिंग हैं जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं। And they all could cause the full range of disease from asymptomatic infection all the way to severe. हम कह सकते हैं कि XB रुचि के 2 XB वेरिएंट घट रहे हैं या स्थिर हो रहे हैं, लेकिन EG.5 बढ़ रहा है, और मैं कह सकता हूं कि दुनिया भर में एक भी वेरिएंट प्रमुख नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग वायरस हैं जो घूम रहे हैं। वे सभी सितारे हैं, कोविड 2, और वे सभी बीमारी की पूरी श्रृंखला का कारण बन सकते हैं, बिना लक्षण वाले संक्रमण से लेकर गंभीर बीमारी और मृत्यु तक, और हमारे हस्तक्षेप सबसे गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि कम निगरानी और रिपोर्टिंग के संदर्भ में भी विश्लेषण के लिए उपलब्ध अनुक्रमों की कम संख्या है, और यह बाईं ओर ऊपरी आंकड़े में चित्रित किया गया है। लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह अधिक अनुक्रमों के बारे में नहीं है, अनुक्रमों के अच्छे भौगोलिक प्रतिनिधित्व के बारे में है हमारे विशेषज्ञों के विश्लेषण के लिए, और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे विभिन्न देशों से आते हैं, विभिन्न सेटिंग्स की एक किस्म है, और यह कि उन अनुक्रमों को समय पर तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। इसलिए न केवल संख्या घट रही है, भौगोलिक प्रतिनिधित्व घट रहा है, बल्कि एक अनुक्रम के लिए लगने वाला समय भी कम हो रहा है। अनुक्रम के रूप में एकत्र किया जाने वाला एक नमूना होना, किया जाना और उस जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मंच पर साझा किया जाना, वह समय लंबा होता जा रहा है। इसलिए यह इन वेरिएंट के लिए समय पर और मजबूत तेजी से जोखिम आकलन का उत्पादन करने की हमारी क्षमता को कम करता है। यह क्षेत्र के अनुसार वेरिएंट परिसंचरण को देखने का एक और तरीका है। वहाँ देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे स्पष्ट करना चाहते थे। वेरिएंट ट्रेंड्स वैश्विक स्तर पर बहुत अलग है, और इनमें से प्रत्येक वेरिएंट का प्रभाव, जैसा कि हम उनका मूल्यांकन करते हैं, अलग अलग आबादी में थोड़ा अलग व्यवहार कर सकते हैं जो पहले प्रसारित हो रहा था। चिंता के पिछले वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन उपवंश, क्या एक आबादी ने XBA.1 या BA.2 या BA.4 BF5 या दोनों का अनुभव किया? लेकिन लोगों को वैक्सीन की आखिरी खुराक कब मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय के साथ प्रतिरक्षा कम हो रही है। P.2.86 की निगरानी के तहत वेरिएंट पर अभी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे पास 200 से कम अनुक्रम है जो विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। WG के 5 क्षेत्रों में 21 देशों से आ रहा है। हमारे पास BA.2.86 पर सीमित जानकारी है। We're not able to estimate growth rate, but what we can say is, given that it's been detected in 21 countries, we know that it is circulating.
But what we can also say is that so far we have not seen it outcompete. इसे निगरानी के तहत एक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन थे और इसलिए हमने जल्दी से इसे निगरानी के तहत विचरण लेबल किया जो हम कर सकते हैं। हम विकास दर का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यह 21 देशों में पाया गया है। हम जानते हैं कि यह फैल रहा है, लेकिन हमें यह भी समझ में नहीं आता है कि हम यह भी कह सकते हैं कि हमने अब तक इसे प्रचलन में रुचि के अन्य रूपों से आगे नहीं देखा है। इसलिए यह अभी भी बहुत कम संख्या है और हम इस और किसी भी अद्यतन जानकारी पर चर्चा करने के लिए अपनी टैब की बैठक के साथ बहुत बार काम कर रहे हैं और हम उन देशों के लिए बहुत आभारी हैं जो इस पर रिपोर्ट करना जारी रख रहे हैं यदि ऐसा है। इसलिए जैसा कि मैंने वीजा के माध्यम से साझा किए गए अनुक्रमों का उल्लेख किया है, यह इन अनुक्रमों का विश्लेषण करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मंच है। इन संख्याओं में समय के साथ गिरावट आई है और न केवल मात्रा बल्कि ये कहां से आ रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि वहां न केवल उन रंगीन रेखाओं में गिरावट आई है बल्कि अनुक्रम प्रस्तुत करने वाले देशों का अनुपात WHO क्षेत्र द्वारा बहुत भिन्न होता है और इसलिए हमें जो करने की जरूरत है वह यह है कि हमारे सहयोगियों में से एक बुद्धिमान अनुक्रमण को बुलाता है, इसलिए अच्छा भौगोलिक प्रतिनिधित्व, ताकि हम दुनिया भर में देख सके कि वास्तव में क्या फैल रहा है, प्रसारित हो रहा है और नए वेरिएंट का तेजी से पता लगाने में तेज हो सकता है। So WHO continues to work with all member states and we issued an updated global strategic plan. इसे देखने का एक ही तरीका है, लेकिन अभी अधिकांश अनुक्रम हमारे 3 क्षेत्रों, अमेरिका के क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र और हमारे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए हमें अपने अन्य क्षेत्रों से आने वाले अनुक्रमों के अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर से कि हमारे पास अच्छा विजुअलाइजेशन है, इसलिए WHO सभी सदस्य देशों के साथ काम करना जारी रखता है और हमने 2 साल की अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अद्यतन वैश्विक रणनीतिक योजना जारी की है और यह संकट मोड से संक्रमण में देशों का समर्थन करने के लिए है, जबकि हम इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में दीर्घकालिक रोग प्रबंधन में थे। To prevent, diagnose and treat COVID-19, to reduce mortality, morbidity and long-term sequelae, उद्देश्य वहाँ सूचीबद्ध है जो शुरुआत से हमारे उद्देश्यों के समान है। संक्रमण की घटनाओं को कम और नियंत्रित करें, गंभीर बीमारी को कम करें और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर प्रभाव को कम करें, क्योंकि जिन लोगों को कोविड के लिए बेड की आवश्यकता होती है वे ऐसे बेड हैं जो उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें अन्य बीमारियों के लिए उनकी आवश्यकता है, और उन संक्रमणों और गंभीर बीमारी को रोकने के लिए हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कोविड-19 के निदान और उपचार को रोकने के लिए कोविड-19 के बाद की स्थिति या लंबे समय तक कोविड सहित मृत्यु दर, रुग्णता और दीर्घकालिक स्थिति को कम करना और हमारे लिए हमारे सदस्य राज्यों का समर्थन करना। और जब हम इस पर काम कर रहे थे तो हम अभी 2 साल की संक्रमण अवधि का उपयोग कर रहे हैं ताकि देशों को दीर्घकालिक रोग प्रबंधन प्राप्त करने में मदद मिल सके। हम महामारी की तैयारियों को अद्यतन करने के लिए और भी लंबी अवधि की योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। आपने हाल ही में प्रेड्स पर एक खाली शराब संगोष्ठी आयोजित की थी या उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन को देखते हुए महामारी की तैयारी योजनाओं को अपडेट करना था। आपके पास मोज़ेक पर कुछ सेमिनार है जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न घटकों का उपयोग करने के लिए विभिन्न देशों में निगरानी के विभिन्न तत्वों को देख रहा है। The different groups that are dealing with bioinformatics and sequencing so that we could provide a framework and more structure around using sequencing and the information coming from sequencing for public health action. I'm almost finished before I hand over to Anne, but I just wanted to reiterate and thank members of our WHO advisory groups who are working with हम एक 10 वर्षीय वैश्विक जीनोमिक निगरानी रणनीति के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि अनुक्रमण क्षमताओं में पिछले 3.5 वर्षों में बहुत विस्तार हुआ है और हमें संक्रामक रोगों के लिए इन क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता है। महामारी और महामारी की क्षमता वाले पालतू रोगजनकों के लिए, न केवल SARS-CoV-2 और आपने PSN के बारे में सुना होगा। यह नेटवर्क जो जैव सूचना विज्ञान और अनुक्रमण से निपटने वाले विभिन्न समूहों को एक साथ खींच रहा है ताकि हम अनुक्रमण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए अनुक्रमण से आने वाली जानकारी का उपयोग करके एक रूपरेखा और अधिक संरचना प्रदान कर सके। एनी को सौंपने से पहले मैं लगभग समाप्त हो गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हमारे WHO सलाहकार समूहों के सदस्यों को दोहराना और धन्यवाद देना चाहता था जो इन वेरिएंट का आकलन करने के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आप आज टैनी से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास TAG कोवैक भी है जो कोविड-19 वैक्सीन संरचना के लिए तकनीकी सलाहकार समूह है जो वर्तमान कोविड-19 टीकों पर भिन्नता के प्रभाव को देख रहा है और यह निर्धारित करना कि वैक्सीन संरचना में कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं। और हम SAG के साथ जुड़ते हैं जो हमारा रणनीतिक समूह है जो टीकाकरण नीतियों पर सलाह देता है और कोविड-19 और कई अन्य सहित टीकाकरण देने की रणनीतियों को देख रहे हैं। इसलिए डेटा को देखने से लेकर वैक्सीन संरचना के आसपास निर्णय लेने से लेकर नीतियां निर्धारित करने तक हम दुनिया भर के लोगों और देशों से आने वाले डेटा पर भरोसा करते हैं ताकि इनमें से प्रत्येक वेरिएंट की निगरानी और आकलन किया जा सके, खासकर जब वे टीकों, चिकित्सीय निदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों की प्रभावशीलता के हमारे उपयोग से संबंधित है। और मेरे लिए आखिरी स्लाइड 9 अगस्त को हमारे निदेशक जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कोविड-19 के लिए स्थायी सिफारिशें जारी की और वे इन प्रमुख क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के लिए विभिन्न विशिष्ट सिफारिशों को कवर करते हैं। GI के माध्यम से स्लाइड A पर सूचीबद्ध है, उनमें से प्रत्येक को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये काफी हद तक कोविड योजनाओं को अपडेट करने पर केंद्रित है। कई अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों के संदर्भ में कोविड से निपटने वाले हमारे अद्यतन SPRP को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक निगरानी बनाए रखना। To make sure we increase vaccination coverage
among the at-risk groups, यह according to सुनिश्चित SAGE, करना कि देश डेटा our की booster रिपोर्ट कर रहे coverage हैं और globally, डेटा वैक्सीन is around प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहे हैं 55%, ताकि हम वास्तव but में in the महाकाव्य स्थिति region वेरिएंट of परिदृश्य को Africa समझ to सकें। around हम अपने जोखिम 80% आकलन का of संचालन कर people सकते over हैं और हम 60 WHO have को सलाह received a देने में booster मदद करने dose. के लिए हमारे What is सलाहकार really समूहों का critical for समर्थन कर us सकते is हैं not just कि क्या when किया to जाना boost चाहिए। people, यह सुनिश्चित करने not के लिए only हम if you SAG receive के a अनुसार booster, जोखिम but वाले when you समूहों के receive the बीच booster टीकाकरण कवरेज dose. बढ़ाते हैं। So please follow वैश्विक your स्तर पर national हमारा guidelines बूस्टर and get कवरेज लगभग boosted if you get a 55% है, additional dose when it's time for you. लेकिन अफ्रीका के क्षेत्र में 60 We से need to make अधिक sure we लोगों के continue लगभग to do 8% को research, बूस्टर we खुराक मिली है। continue और to हमारे लिए provide वास्तव में optimal महत्वपूर्ण clinical बात यह care, नहीं है कि integrate आपने clinical अपना care बूस्ट कब into प्राप्त किया, न केवल healthcare यदि आपने अपना pathways, बूस्टर प्राप्त किया, and to बल्कि make जब sure आपने we अपनी बूस्टर खुराक really प्राप्त की है। focus on इसलिए कृपया equitable अपने access राष्ट्रीय to दिशा safe and निर्देशों का effective पालन करें और validation प्रोत्साहित हो। जब pathways. आपके लिए समय हो This तो is उस अतिरिक्त still खुराक को not प्राप्त करें। seen globally in terms of access to diagnostics, therapeutics, and vaccines for COVID-19. So there's much more work we need to do for COVID, but also for future threats. And I think with that, I will pass over to Anne. Over to you. Thank you, Maria. And so I would like to हमें यह सुनिश्चित the करने की next slide, आवश्यकता है just कि to हम अनुसंधान explain करना a bit जारी more रखें। हम what उच्चतम the नैदानिक देखभाल प्रदान करना advanced जारी group रखते हैं। for viral evolution नैदानिक looks like, देखभाल and मार्गों में all of नैदानिक our देखभाल को colleagues and एकीकृत public करते health हैं experts और यह are सुनिश्चित करते हैं monitoring and कि हम looking वास्तव at में सुरक्षित, where प्रभावी और to गुणवत्ता सुनिश्चित look चिकित्सा प्रतिवादों तक at what समान पहुंच पर variants and ध्यान lineages केंद्रित are करें। यह emerging. अभी भी कोविड-19 के Remember, लिए the निदान, virus चिकित्सा और टीकों will तक पहुंच के evolve. संदर्भ में विश्व स्तर पर नहीं देखा गया है। इसलिए हमें कोविड के लिए और भी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन भविष्य के खतरों के लिए भी। और मुझे लगता है कि इसके साथ मैं एन को सौंप दूंगा, आपको सौंप दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसलिए मैं आपको अगली स्लाइड में देखना चाहता हूं कि बस थोड़ा सा समझाते हुए कि क्या है। Of that evolution over time, and we'll only see once we get a specimen or a sequence in the unusual circumstances where we are getting sequences. एक अनुक्रम के लिए यह वायरल विकास के लिए सलाहकार समूह था। वास्तव में हमारे सभी सहयोगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि कौन से वेरिएंट और छवियां उभर रही हैं। याद रखें, वायरस विकसित होगा, यह एक व्यापक तथ्य है और यह विकसित होता है क्योंकि संचरण दुनिया भर में मानव संचरण में होता है। मारिया ने जो कहा है वह यह है कि कम सरल अनुक्रमण हो रहा है, इसलिए हम समय के साथ उस विकास को कम देख रहे हैं और हम केवल एक नमूना प्राप्त करने के बाद देखेंगे। इसके अलावा असामान्य परिस्थितियों में जहां हमें अनुक्रम मिल रहे हैं जो इन नियमित निगरानी प्रणालियों में है, जो अब महामारी के दौरान हम जो कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमें जानवरों के जलाशयों में विकास मिल सकता है जिनकी निगरानी नहीं की जा रही है और इसलिए अगर जानवरों से मनुष्यों में जूनोटिक स्पिलओवर होता है तो वे उन वेरिएंट का उद्भव भी हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम त्वरित विकास तब होते हैं जब वायरस में पुनर्संयोजन होता है जो बीच मौजूद होता है। यह मानव वायरस का हिस्सा है जो प्रसारित हो रहा है या यदि दृढ़ता है। अतिरिक्त दबाव, प्रतिरक्षा दबाव और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों के साथ संक्रमण के बीच ले। कृपया अगली स्लाइड करें। branching off quite substantially in a separate branch from the old lineages and sublineages, which are the blue and the green and the yellow lineages in the circular tree that you see, as well as लेकिन याद रखें, इस समय ओमिक्रॉन वह है जो उन सभी अलग अलग वंशों को प्रसारित कर रहा है। हम इंच में जमीन पर हैं और उन्हें यहाँ नारंगी, लाल और पीले रंग में चित्रित किया गया है। आप देखेंगे कि पुराने वंशों और उपवंशों से एक अलग शाखा में काफी हद तक शाखाएं हैं जो नीले और हरे और पीले रंग के हैं। It has upper airway tropism, so it's moved away from being tropic to the lower airway, which is what the previous sublineages or variants were. And now we find that the tropism is for the upper airway, and it gives a disease that has lower severity, especially if people मुझे सिर्फ उस गोलाकार पेड़ में जाने दे जिसे आप देखते हैं और साथ ही दूर बाएं सबसे दाएं चित्र में तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक अन्य वंशों से अलग है। हम जो भी उपवंश देख रहे हैं वे संबंधित हैं, वे सभी ओमिक्रॉन का हिस्सा है और ओमिक्रॉन में उच्च अंत इकाई पलायन की विशेषताएं हैं। इसमें ऊपरी वायुमार्ग ट्रोपिज्म है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय से निचले वायुमार्ग में चला गया है जो पिछले उपवंश या वेरिएंट थे और अब हम पाते हैं कि प्रोफाइल पूरी तरह से ऊपरी वायुमार्ग है और यह एक बीमारी देता है जिसमें कम गंभीरता होती है, खासकर अगर लोगों में पूर्व प्रतिरक्षा या टीकाकरण होता है। कृपया अगली स्लाइड करें। 0.9% to 33.6%, and we have a reasonable number of sequences, 31,000. If you look at the variants under monitoring that's below, you'll see the blue colors showing तो यह जटिल दिखता है, लेकिन यह सिर्फ निगरानी और ब्याज के विचरण को दोहरा रहा है। शीर्ष पर आपके पास रुचि के 3 प्रकार हैं, जो मारिया ने पहले ही हरे रंग में उल्लेख किया है। आप रंग दिखा सकते हैं कि पिछले 5 हफ्तों में व्यापकता यहाँ चित्रित की गई है, इसलिए सप्ताह 32 से सप्ताह 36 तक काफी स्थिर रह रहा है। ET5 में वृद्धि हुई है, जो 25.9% से 33.6% तक जा रही है, और हमारे पास 31,000 अनुक्रमों की उचित संख्या है। यदि आप नीचे दी गई निगरानी के तहत भिन्नता को देखते हैं, तो आपको नीले रंग दिखाई देंगे, स्थिर या घटते। हरे रंग में आप घटते प्रसार को देखते हैं और यह सिर्फ पीले रंग में है। एक सभी 1.9.2 जो प्रसार में वृद्धि दिखा रहा है। getting too few data points for us to have very robust or very confident prevalences globally. Next slide, please.
So what the TAG BE and other experts do is they look at, okay, what is happening with आप these ध्यान देंगे कि जिस sublineages or एक वेरिएंट के बारे में variants that हम we're बात कर रहे seeing हैं, P8 are being 2.86 में डेटा प्रसार भी नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि संख्या इतनी छोटी है। इसलिए यह बहुत उपयोगी है जब आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं, जब आप समझते हैं कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं जो प्रसार को रोकता है, यह समझने के लिए कि हमें अपने पास मौजूद डेटा बिंदुओं की संख्या, अनुक्रमों की संख्या, और जब यह बहुत कम डेटा बिंदुओं तक पहुंच रहा है तो हमारे पास विश्व स्तर पर बहुत मजबूत या बहुत आत्मविश्वास और प्रसार को ध्यान में रखना होगा। कृपया अगली स्लाइड करें। तो अन्य विशेषज्ञों में टैग क्या हो सकता है कि वे ठीक को देखते हैं, इन उपवंशों के साथ क्या हो रहा है, या ये वेरिएंट जो हम देख रहे हैं, रोग जासूस इसलिए कि वे अपने नए उभर रहे हैं या वे बढ़ रहे हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या इसका विकास लाभ है, क्या कोई प्रतिरक्षा पलायन है, और क्या इसका कारण बनता है गंभीर बीमारी, अधिक बीमारी। Trying to be very transparent and trying to say, well, what's the confidence in our assessment of this risk? Is it a low, moderate, and high? And you can imagine that with those low numbers that we've already shown you, that our confidence starts. और यह वास्तव में है, हम इन संकेतकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता के लिए जोर दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सिस्टम, अस्पताल प्रणालियों, क्लिनिकों के लिए, हमारे डॉक्टरों, हमारे चिकित्सकों, वहाँ के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। अगर वे संख्या में वृद्धि होने जा रहे हैं तो उनके जीपी को पेश करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होने जा रहा है। और इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम वास्तव में महत्वपूर्ण है, और हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह कम, मध्यम और उच्च है, और फिर हम बहुत पारदर्शी होने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मविश्वास क्या है। इस जोखिम का हमारा आकलन निम्न, मध्यम और उच्च स्तर पर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन कम संख्याओं के साथ जो हमने आपको पहले ही दिखा दी है कि हमारा आत्मविश्वास कम होना शुरू हो जाता है, और यह केवल समय के साथ होता है। जब अधिक से अधिक मामले और अधिक समय बीत जाता है कि हमारे पास मध्यम आत्मविश्वास हो सकता है, और अधिक डेटा की भी आवश्यकता है। हमें इसके बारे में बताने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं से, विभिन्न क्षेत्रों से डेटा की आवश्यकता है। उस नयापन ने दिया और वे प्रयोगशाला में क्या पा रहे हैं, और इन आकलनों में समय लग सकता है। तो हाँ, हम तेजी से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यह बहुत कम डेटा के साथ कठिन है, और व्यापक आकलन केवल एक बार होता है। कई सप्ताह बीत चुके हैं और विभिन्न स्रोतों से डेटा जमा हो गया है। कृपया अगली स्लाइड करें। तो पहली चीज जो हम करते हैं वह यह समझने की कोशिश है कि क्या कुछ पता चला है। क्या हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि जो लोग अनुक्रमों की निगरानी कर रहे हैं, वे भी हमारी सहायता करते हैं, और वे एक दूसरे को सतर्क करते हैं, और वे इसके बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह कुछ नया है, इसमें बहुत सारे उत्परिवर्तन हैं। क्या हमें इसे निगरानी के तहत एक संस्करण बनाना चाहिए? और हम कहते थे कि विकास का लाभ होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी संख्याओं की आवश्यकता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वास्तव में यह पर्याप्त है यदि बहुत सारे उत्परिवर्तन हैं जो हमें चिंतित करते हैं, और साथ ही सामुदायिक प्रसार के सबूत भी हैं। और आप देखेंगे कि नीचे दिया गया लिंक आपको कुछ परिभाषाएं देगा। वास्तव में हम इनमें से कुछ शब्दों को कैसे परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम खुद एक दूसरे को कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, और सामुदायिक प्रसार का क्या मतलब हो सकता है, और निगरानी के तहत वेरिएंट क्या होगा। In doing this, we've tried to put it into a framework of a risk assessment framework, and I think that's विकास लाभ हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि क्या यह बढ़ रहा है, अगर यह अन्य सभी वंशों की जगह ले रहा है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रतिरक्षा पलायन और गंभीरता के अन्य संकेतकों को देखने की आवश्यकता है, और चिकित्सीय और निदान को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में हमने इसे जोखिम मूल्यांकन ढांचे के ढांचे में डालने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि यह अगली स्लाइड है। And this is very similar to some of the previous tables that we've been showing. It's just the prevalence globally by week, and this is from 2022, so the crossover from the last weeks in 2022, first weeks in 2023, looking at prevalence to see which ones are becoming more prevalent. आगे यहाँ आप विकास लाभ की संख्या को देख सकते हैं। इसलिए यह पहली चीज है जिसे हम जोखिम मूल्यांकन पर आगे बढ़ने से पहले वास्तव में देखना चाहते हैं। बस यह देखना है कि इस वेरिएंट का कितना पता चला है, यह कितना प्रचलित है, और यह कितनी जल्दी हावी हो रहा है। और यह पिछली कुछ तालिकाओं के समान है जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। सप्ताह दर सप्ताह विश्व स्तर पर प्रसार है, और यह 2022 से है, इसलिए पिछले सप्ताह 2022 से क्रॉसओवर। Might help us to understand more what is happening recently under similar surveillance conditions. Next slide, please. So here you have it summarized, the growth और एक समान निगरानी स्थिति। कृपया अगली स्लाइड करें। 2023 के पहले हफ्तों में प्रसार को देखते हुए यह देखने के लिए कि कौन से अधिक प्रचलित हो रहे हैं, और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि आलंकारिक रूप से एक संस्करण काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि एक और संस्करण हावी हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम इसी पर नजर रखना चाहते हैं। यह बहुत अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि हम जिन मामलों को अनुक्रमित कर रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, और इसलिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वह जगह है जहाँ हाल के हफ्तों को
देखते हुए जहाँ चीजें यथोचित रूप से स्थिर हैं, हमें हाल ही में क्या हो रहा है यह समझने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ आपने इसे विकास लाभ, एंटीबॉडी से बचने की गंभीरता और नैदानिक विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, और यह EB5 का उदाहरण है। और मुझे लगता है कि अगली स्लाइड पर आपके पास आपको दिखाने के लिए लिंक होगा और फिर बहुत अधिक विवरण होगा। लेकिन क्या हम जोखिम के स्तर को सोचते हैं? उनमें से प्रत्येक मध्यम या निम्न है, और आत्मविश्वास का स्तर चाहे वह मध्यम हो, कम या उच्च, और इसलिए यह बहुत चर्चा लेता है। यह नहीं है फुल प्रूफ कार्यप्रणाली, और आपके पास निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि कुछ मध्यम या उच्च की एक और श्रेणी हो सकती है वगैरह। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सभी के पास इस पर आम सहमति है, लेकिन यह कोशिश करने और समझने का एक तरीका है कि यह नया संस्करण कितना महत्वपूर्ण है। लेनी बस अचानक उभर रहा है, हमें इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के बारे में विचार करने के लिए कहाँ रखना चाहिए। अगली स्लाइड। have a low risk generally of being an emerging important sublineage. और इसलिए यहाँ 85 जोखिम मूल्यांकन के लिए कुछ पाठ है। मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर हम जो करना चाहते थे वह विचारों का समग्र मूल्यांकन प्राप्त करना है जो हमें अच्छी तरह से मदद करता है। लेकिन हमें EG5 मई बताता है आमतौर पर एक उभरते और महत्वपूर्ण उपवंश होने का कोई जोखिम नहीं है। जोखिम मूल्यांकन में विश्वास है। There is some testing, some detection happening, and it's at that level that we need to understand what is going on. So at the moment, the recommendation is that we need to get more data, more in vitro data from laboratories, and we keep on looking at the data to have a dynamic process of our risk assessment. Next slide, please. And just to finish off, this is PA 2.86, where we have really very few. और हालांकि इसलिए भी क्योंकि हमारे पास बहुत कम डेटा है, और यह उन सभी चुनौतियों के कारण है जिन पर हमने निगरानी के दृष्टिकोण से हाईलाइट किए गए क्षेत्र में चर्चा की है। लेकिन यह वह आधारभूत डेटा हो सकता है जो हमारे पास भविष्य में होने जा रहा है, जहां हम जानते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है जिसका हम पता नहीं लगा रहे हैं। हम परीक्षण नहीं कर रहे हैं, कुछ परीक्षण हो रहे हैं, कुछ पहचान हो रही है, और यह उस स्तर पर है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है। इसलिए फिलहाल सिफारिश यह है कि हमें प्रयोगशालाओं से डेटा को फिर से प्राप्त करने में अधिक डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और हम एक गतिशील प्रक्रिया के लिए डेटा को देखते रहते हैं। हमारे जोखिम मूल्यांकन के बारे में कृपया अगली स्लाइड करें। और बस खत्म करने के लिए यह IQ.86 है, जहाँ हमारे पास वास्तव में बहुत कम नमूने या अनुक्रम है। वैश्विक स्तर पर XP 1.5 और उससे भी अधिक की तुलना में स्पाइक में 20 से अधिक नए रोगी हैं। यदि आप RBD में सभी उत्परिवर्तनों पर विचार करते हैं, फिर भी, और यह उस कारण का हिस्सा है कि यह कई देशों में पाया गया था, और आप देख सकते हैं, और उन देशों में से कुछ में निश्चित सामुदायिक प्रसार है। तो यही कारण है कि भले ही वे बहुत कम अनुक्रम है और यह बड़े पैमाने पर विकास लाभ नहीं है कि हम इसे निगरानी के तहत संस्करण बनाने का एक और कारण होगा। हमने इसे निगरानी के तहत एक वेरिएंट बनाया है, और हम इस पर नजर रख रहे हैं और अधिक जानकारी इकट्ठा करने, अधिक डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली स्लाइड कृपया। और आप देखेंगे कि प्रयोगशाला से आने वाले कुछ डेटा एलेक्स सीगल की प्रयोगशाला से दक्षिण अफ्रीका से लाइव वायरस न्यूट्रलाइजेशन डेटा है। हमें बता दें कि कम से कम एक आंक के साथ अभी भी यह 2.86 होगा कि यह बहुत समान हो सकता है। एंटीबॉडी का निष्प्रभावीकरण तो उन व्यक्तियों से सीरम जिनके पास विभिन्न वेरिएंट के साथ ब्रेकथ्रू संक्रमण था, और आप सबसे दाईं ओर अलग अलग वेरिएंट देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वास्तव में यह अपनी प्रतिरक्षा चोरी में काफी समान दिखता है। यह XB 1.5 के न्यूट्रलाइजेशन में है, जो है। In addition, what is very comforting is the lab starts to gather information about what does it look like in the laboratory. अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि किए जाने की जरूरत है। कुछ छद्म वायरस न्यूट्रलाइजेशन डेटा है जो हमें यह भी दिखा रहा है कि यह मामला हो सकता है, और ये वे डेटा है जिन्हें हमें इकट्ठा करने और फिर समीक्षा करने और इस बारे में बहस करने की आवश्यकता है, ताकि हमें इस वेरिएंट के जोखिम मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके। कृपया अगली स्लाइड करें। इसके अलावा यह बहुत आरामदायक है क्योंकि प्रयोगशाला इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि यह प्रयोगशाला में कैसा दिखता है, इस स्ट्रेन के वायरल गुण क्या है, क्या यह 1.5 से अधिक से अलग दिखता है, और चीजें इसे काफी समान देख रही हैं। इसलिए चीजें इतने फेनोटाइपिक रूप से नहीं बदली हैं जिस तरह से वायरस है। Next slide, please. So in summary, we have EG5 about 30%. कृपया It's the most prevalent at the moment. XBB खुद को व्यक्त करता है और चीजों को शारीरिक रूप से और कम से कम इन विट्रो स्तर पर करता है, और यह संभावित रूप से लोगों और मानव से मानव संचरण के बीच चिकित्सकीय रूप से भी दिखता है। लेकिन हमें जीनोटाइपिक जानकारी पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे उत्परिवर्तन थे, और यह उन तनावों का हिस्सा है जो हमारे पास है कि हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भिन्नता क्या है, और उपवंश और जीनोटाइप हमें बताते हैं, और यह हमारे देशों के भीतर भौतिक गुणों और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम में फिर से कैसे अनुवाद करता है। अगली स्लाइड। सारांश में हमारे पास EV5 लगभग 50% है, इसलिए यह इस समय सबसे प्रचलित है। यह भी 1.6 है। इन और एक्सट्रीम 1.5 भी महत्वपूर्ण है फिर भी, और यह 83.86 निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हमें निगरानी करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे उत्परिवर्तन है। डेटा असीमित संख्या सीमित है, यहाँ तक कि दुनिया भर के प्रयोगशाला विशेषज्ञों में बहुत सारे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं जो इन उपभेदों को देखने के लिए देखते हैं
कि क्या हो रहा है। कृपया अगली स्लाइड करें। और बस मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को प्राप्त करने, उन्हें एक साथ रखने, उन्हें सारांशित करने में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देने के साथ साथ आपके लिए तकनीकी सलाहकार समूह और फिर वैश्विक समुदाय, हमारे सभी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को देखना संभव है ताकि हमारे पास डेटा हो, डेटा के बारे में बात करने में सक्षम हो सके और यह पता लगा सके कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। I should tell you, and I think if Supriya didn't mention this already, that we will make slides available. That's always a question that we get. तो इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनी। मैं प्रश्नोत्तर को खोलने जा रहा हूँ, इसलिए प्रिया कृपया व्हाट्सएप द्वारा मुझे कुछ प्रश्न भेजने में मदद कर रही है क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन साझा कर रहा था। हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए लगभग 20 मिनट कम है, जबकि मैं कुछ समापन टिप्पणी करने के लिए साइबेरिया वापस आ गया हूँ। इसलिए मैं आपको प्रश्नोत्तर अनुभाग में कुछ प्रश्न डालने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, न कि चैट भाग में, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। मुझे आपको बताना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर सुप्रा ने पहले ही इसका उल्लेख किया है तो हम स्लाइड उपलब्ध कराएंगे। यह हमेशा एक सवाल है जो हमें मिलता है, इसलिए हम उन स्लाइडों को उपलब्ध कराएंगे और एक रिकॉर्डिंग होगी इस ऑनलाइन का एक लिंक ताकि आप इसे और चीयरलीडर देख सकें। तो कुछ सवाल जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, पहला है, और हमें यह प्रश्न बहुत मिलता है, क्या BA.2.86 ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा है या क्या यह बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन के कारण ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा नहीं है? WHO संभावित वर्गीकरण प्रश्नों और संबंधित चिंताओं को कैसे देखता है? तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कौन इसके साथ शुरू करना चाहता है। मैं हमीरा के साथ शुरू करने के लिए लुभा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आपको पैनल में है और हम आपसे सुनना पसंद करेंगे, लेकिन शायद हम पैनल के पार पूछ सकते हैं तो आपको दर्पण दे। धन्यवाद। हाँ, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमने बहुत नियमित रूप से चर्चा की है और एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है कि उत्परिवर्तन को वास्तव में हमारे लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने दम पर पूर्ण परिभाषा के बजाय उस प्रश्न पर विचार कर सकें। इसलिए उत्परिवर्तन की संख्या 2.86 होगी। यह असामान्य था और इसने हमारे लिए, यदि आप चाहें तो, लक्षण वर्णन और जोखिम मूल्यांकन के एक उन्नत प्रकार को ट्रिगर करने का काम किया। हालांकि अब तक हमें उस जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से जो मिला है उसके आधार पर, और यह एक बहुत ही प्रारंभिक मूल्यांकन है, जैसा कि अन्ना ने पहले ही कहा है, हम उन विशेषताओं को नहीं देखते हैं जो इसे ओमिक्रॉन परिवार के बाकी हिस्सों से दूर ले जाते हैं, या तो एंटीजेनिक दूरी के संदर्भ में या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसे कैसे देखती है, नहीं प्रयोगशाला में यह कैसे व्यवहार कर रही है, और बहुत शुरुआती डेटा के संदर्भ में। इसलिए उन परिवर्तनों के बिना मुझे लगता है कि हमारे लिए इसे एकोन से अलग कुछ कहने का औचित्य साबित करना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि इस समय बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन के बावजूद भी। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आने वाले नए डेटा के साथ उस जोखिम मूल्यांकन को अपडेट करना जारी रखें, और जैसा कि हम देखते हैं कि यह वास्तविक जीवन में कैसे व्यवहार करता है, न केवल प्रयोगशाला में। मुझे लगता है कि हम इस समय वही हैं, और लेकिन आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, और मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हम अधिक डेटा देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से इस समय क्राउन परिवार का हिस्सा है। धन्यवाद। लोरेंजो, क्या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बस मुझे लगता है, मेरा मतलब अमीरा है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि उत्परिवर्तन हमारी रुचि को ट्रिगर करते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि हमें महामारी विज्ञान और प्रयोगशाला डेटा को देखना होगा, और ऐसा नहीं है। मेरे लिए फिलहाल हमें यह बताने के लिए संकेत दें कि यह ओमिक्रॉन का हिस्सा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जोखिम मूल्यांकन अभी भी चल रहा है, और जैसे ही हम जारी रखेंगे इसे अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद लोरेंजो। धन्यवाद सैम। धन्यवाद मेयर। मुझे लगता है कि आपने मीरा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनमें से एक यह है कि आप जानते हैं कि अभी हमारे पास जो जानकारी है, मुझे लगता है कि यह चीजों में से एक है। इस महामारी के दौरान यह इतना आश्चर्यजनक रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी विषय के बारे में अधिक जानकारी सीखते हैं, चाहे वह भिन्नता हो या कुछ और, यह उस समय हमारे पास मौजूद जानकारी के साथ है, और हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और हम सही करते हैं या हम बदलते हैं जहां आवश्यक हो। तो इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह बहुत है। यह एक सवाल है जो हमें अक्सर मिलता है। अपशिष्ट जल निगरानी डेटा के आसपास काफी सवाल है, और हम अपशिष्ट जल निगरानी डेटा का उपयोग कैसे करते हैं। तो सवाल आ रहा है, क्या WHO देशों को अपशिष्ट जल निगरानी डेटा साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? एक और सवाल है जो कहता है कि WHO सदस्य राज्यों को अपशिष्ट जल निगरानी डेटा इकट्ठा करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने जा रहा है। वर्तमान में कुछ देश इस डेटा को साझा करते हैं, और इसे सामान्यीकृत करने के तरीके के लिए कोई वैश्विक मानक नहीं है। हम इस तरह के निगरानी प्रयासों का समन्वय करेंगे, इसलिए हम WHO के दृष्टिकोण से जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात में भी दिलचस्पी है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन कैसे उदाहरण के रूप में आपने अपशिष्ट जल निगरानी का उपयोग किया। हमारे लिए हम अपशिष्ट जल निगरानी को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। समग्र रूप से निगरानी के बारे में हमने कई वर्षों से पोलियो में इसकी उपयोगिता देखी है, और हमने इसे देखा है। सबसे पहले हमारा दायरा 2, और शायद मैं लोरेंजो से पूछ सकता हूँ कि क्या आप कुछ डेटा पर टिप्पणी कर सकते हैं जो हम देशों से देख रहे हैं और इसका उपयोग कैसे किया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन हमारे आंतरिक रूप से हम कई अलग अलग कार्यक्रमों, कई रोग क्षेत्रों में एक साथ आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे धोने के सहयोगियों के साथ अपशिष्ट जल निगरानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक सामान्य
सामान्य दृष्टिकोण के साथ एक साथ आना, महामारी और महामारी की क्षमता वाले रोगजनकों के लिए। यह देखते हुए कि इन रोगजन को वायरस या बैक्टीरिया की विभिन्न विशेषताएं हैं, देशों में कई अलग अलग अपशिष्ट जल निगरानी प्रणालियां हैं और अलग अलग उद्देश्य है। क्या आप शुरुआती पहचान के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप रुझानों की निगरानी के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? Critical systems like PCR-based surveillance, our sequencing capacities. But maybe I'll go to Mira, if you can talk a little bit about in the UK, and then Anne in South Africa. लेकिन हमें एक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अपशिष्ट जल में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं। अपशिष्ट जल के लिए बहुत सारे वित्त पोषण को लक्षित किया जा रहा है और यह अद्भुत है। हम इसे प्रोत्साहित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसे अनुकूलित किया जाए और हम पीसीआर आधारित निगरानी, हमारी अनुक्रमण क्षमताओं जैसी वास्तव में महत्वपूर्ण प्रणालियों से धन न ले। लेकिन शायद मैं मीरा के पास जाऊंगा। अगर आप यूके और फिर दक्षिण अफ्रीका में एनी के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, और फिर लोरेंजो, अगर आप इस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं कि हमने इसे महामारी के दौरान इस्तेमाल किए गए अपशिष्ट जल का उपयोग कैसे देखा है। मीरा, धन्यवाद। तो एक तरह से हम ब्रिटेन में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस समय हम SARS-CoV-2 निगरानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि हम एक खोजपूर्ण चरण में हैं। हमने महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल किया। महामारी के शुरुआती हिस्सों में हमारे पास डेटा है जो हमें लगता है कि यह दिखाता है कि इसका उपयोग SARS-CoV-2 रुझानों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसलिए महामारी विज्ञान early, sometimes before their clinical cases were detected. And that was a very interesting use case that we would like to explore. But at the moment we do not actually have that running, very much learning from the और मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण यह है कि क्या इसका उपयोग नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो कि उन परिवर्तनों में रुझानों की निगरानी के विपरीत है जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और यही वह है जिसे हम खोज में काफी रुचि रखते हैं। मैंने सोचा कि यह PH 2.86 के बहुत शुरुआती आकलन की एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता है कि हमारे पास ऐसे देश थे जो बहुत जल्दी एक नया संस्करण उठा सकते थे, जैसे ही एक पूरा जीनोम जल्दी था, कभी कभी उनके नैदानिक मामलों का पता चलने से पहले, और यह एक बहुत ही दिलचस्प उपयोग का मामला था जिसे हम खोजना चाहते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास वास्तव में वह दौड़ नहीं है। इनमें से कुछ पर दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत कुछ सीखा है। मैं मारिया के साथ भी सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि मॉडल में उपयोग के मामले को वास्तव में हम क्या नमूना लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके संदर्भ में काफी विकास की आवश्यकता है। वे बड़े और काफी महंगे सिस्टम हो सकते हैं, और क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन लागत प्रभावी, लागू करने में आसान, प्रभावी निगरानी प्रणाली बना सकते हैं जो परीक्षण के साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए मुझे डर है कि यह यूके से एक प्रारंभिक दृष्टिकोण था और मैं एन को शायद अधिक उन्नत के लिए सौंप दूंगा। धन्यवाद मीरा। Implemented, you need to have it running for many months, if not years. You need to understand what it looks like from a baseline point of view, and then you can see fluctuations and trends. And yes, for BA 2.86, it was useful to find the mutation. So what you can't necessarily यह सिर्फ उपयोगी है अगर आप सोचते हैं कि हम लोगों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो परीक्षण करने का एक तरीका, और आप इस पोर्टफोलियो के बारे में सोच सकते हैं और अन्य बीमारियों के लिए पर्यावरण में क्या है। इसका परीक्षण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या प्रसारित किया जा रहा है। महिलाएं हर समय व्यक्तियों का परीक्षण करती हैं, हमें रुझानों के बारे में बताने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए हम नैदानिक डेटा, केस डेटा से संबंधित हैं और आप कुछ रुझान देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मारिया इस तथ्य से बात करती है कि आपको बेसलाइन डेटा को लागू करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है, आपको इसे कई महीनों तक चलाने की आवश्यकता है, यदि वर्षों नहीं तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह कैसा दिखता है बेसलाइन दृष्टिकोण से, और फिर आप उतार चढ़ाव और रुझान देख सकते हैं। और हाँ, BA 2.86 के लिए उत्परिवर्तन ढूंढना उपयोगी था। तो जो आप आवश्यक रूप से नहीं पा सकते हैं, वह आपको वह वंश देने के लिए सभी उत्परिवर्तनों को एक साथ रखना है। लेकिन आप जो कर सकते हैं वह अद्वितीय उत्परिवर्तनों को ढूंढना है और यह दिखाना है कि यदि आप केवल मामलों को देख रहे हैं तो उनका पता लगाने की तुलना में व्यापक संचरण हो सकता है। इसलिए यह उपयोगी रहा है। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर बहुत काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ID वेब पेज पर NICU से नियमित रिपोर्टें हैं, और हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी NC चिकित्सा अनुसंधान जैसे विभिन्न समूह हैं। परिषद और अन्य समूह भी दौड़ के पानी में मदद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अमेरिकी डेटा दे सकता है। लेकिन आप सही हैं मारिया, मुझे लगता है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम जानकारी की व्याख्या कैसे करते हैं। धन्यवाद सैम। लोरेंजो, बस यह जोड़ने के लिए कि मुझे लगता है कि ऐसी प्रणालियां हैं, निगरानी प्रणाली जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और उदाहरण के लिए अपशिष्ट जल निगरानी नहीं बताती है सामान्य के बीच एक वेरिएंट या सरसकों की गंभीरता और प्रभाव के बारे में कुछ भी, लेकिन यह प्रदान करता है समुदाय में प्रसार की समझ। और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जब यह मौजूदा प्रणालियों का पूरक है जो गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मीरा ने BA 2.86 के हालिया उद्भव के साथ कम से कम कुछ देशों का उल्लेख किया है, यूरोप से, जिसने नैदानिक मामलों में पता लगाने से पहले अपशिष्ट जल में वेरिएंट का पता लगाया है। तो मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प उपयोग मामला है, और मैं मेरे साथ सहमत हूँ कि इसे और अधिक खोजा जाना चाहिए। धन्यवाद लोरेंजो। इसलिए हमारे पास एक विशिष्ट प्रश्न है, और नए संस्करण के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ क्या है? मैं मान रहा हूँ कि यह BA 2.86 है। तो शायद आप जोखिम मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के तत्वों पर फिर से टिप्पणी कर सकते हैं जो हमारे विचरण के लिए किए जाते हैं।
हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं? मुझे पता है कि हमने इसे प्रस्तुति में थोड़ा सा कवर किया है, लेकिन शायद आप दोहरा सकते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या यह किसी अन्य हस्तक्षेप को बदलता है? क्या हमें अपने किसी भी हस्तक्षेप को बदलने की आवश्यकता है? कौन इसे लेना चाहता है? आपके लिए एक और शायद, और बस आपको उस सवाल का जवाब देने में टैग किया। What we know about this so far, we've got the sort of early lab data that shows us that BA 2.86 has evolved. It is a bit distant antigenically, so the way that the immune system sees it from earlier Omicron waves, but it is quite similar to other circulating Omicron lineages at the moment. So it hasn't gone further than those necessarily. मैं इस पर रुक सकता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि यह उस उत्तर से थोड़ा जुड़ा हुआ है जो हमने पहले तथ्यों के बारे में दिया था कि हम अभी भी ओमिक्रॉन परिवार के भीतर इसे बहुत देखते हैं। तो अब तक हम इसके बारे में जो जानते हैं उसे इस तरह के शुरुआती लैब डेटा मिले हैं जो हमें दिखाते हैं कि BA 2.86 विकसित हुआ है। यह एंटीजेनिक रूप से थोड़ा दूर है, तो जिस तरह से प्रतिरक्षा प्रणाली इसे लहरों पर पहले से देखती है, लेकिन यह इस समय नरसंहार पर प्रसारित अन्य लोगों के समान है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि उन लोगों की तुलना में फहराया जाए और हम बहुत शुरुआती प्रयोगशाला डेटा से फिर से कुछ भी नहीं देखते हैं जो सुझाव देता है कि यह बदल गया है। जिस तरह से यह एक वायरस के रूप में व्यवहार करता है तो बदल जाता है या कुछ और जिसे हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं। और भले ही यह शुरुआती दिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रभाव में बदलाव होने जा रहा है। And it's very early days with the number of sequences that we have at the moment to understand whether this is a variant that has a growth advantage that may come to dominate, that could drive any transmission, or whether it's just going to circulate as part of a mix of Omicron variants or indeed. मुझे लगता है कि वंशों से प्रसारित अन्य विशेष रूप से मुझे लगता है कि हमने पहले ही पहचान लिया है कि इसके विकास को समझना काफी कठिन है। तो विकास स्पष्ट रूप से विभिन्न घटकों के मिश्रण का एक घटक है। यह ध्यान में रखता है कि आप वायरस प्रतिरक्षा पलायन, इसकी संक्रामकता को जानते हैं कि जनसंख्या प्रतिरक्षा और संभावित रूप से कुछ व्यवहार संबंधी घटक योगदान दे सकते हैं। और हम यह समझने के लिए इस समय हमारे पास मौजूद अनुक्रमों की संख्या के साथ बहुत शुरुआती दिन है कि क्या यह एक ऐसा संस्करण है जिसमें विकास का लाभ है। यह हावी हो सकता है, यह किसी भी संचरण को चला सकता है, या क्या यह सिर्फ ओमिक्रॉन विचरण के मिश्रण के हिस्से के रूप में प्रसारित होने जा रहा है, या वास्तव में यह खत्म होने जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम प्रभाव के उस हिस्से पर अटकलें लगा सकते हैं, इसका संचरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अन्यथा यह इस समय वास्तव में ओमिक्रॉन के बाकी हिस्सों की तरह दिखता है। और क्या यह उचित प्रतिनिधित्व चर्चा है? अन्य लोगों को अलग अलग तरीकों से बातें कहना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब कितने सुधार है वह असंभव है। कितने लोग बीमार हो रहे हैं, क्या हम उन्हें नमूनों के साथ गिन सकते हैं या नहीं? और कितने लोग चिकित्सकों, GP, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य दबाव का हिस्सा है जिसे आप प्रवेश और ICU गंभीर बीमारी ICU प्रवेश में निगरानी करना चाह सकते हैं। और इस समय वे एक संकेतक नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। यही पैरामीटर है जिन्हें हम निगरानी करना चाहते हैं। And it's not just vaccination. We have many safe and effective vaccines that are out that are in use. धन्यवाद और धन्यवाद मेयर। मैं सिर्फ यह दोहराना चाहता हूं कि कोविड के लिए हमारे पास कई सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, चिकित्सा हस्तक्षेप हैं, जिनमें वे सभी प्रकार शामिल हैं जो प्रचलन में हैं, जो संक्रमण को रोकते हैं, गंभीर बीमारी के विकास के जोखिम को कम करते हैं, पोस्ट कोविड स्थिति के विकास के जोखिम को कम करते हैं, इस वायरस के संक्रमण से मरने की संभावना को कम करते हैं। और यह सिर्फ टीकाकरण नहीं है, हमारे पास कई सुरक्षित और प्रभावी टीके हैं जो उपयोग में हैं। और वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों को टीका लगाया जाता है, लेकिन यह भी देखें कि आपकी अगली खुराक कब आवश्यक है। हमारे लिए WHO में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग जोखिम वाले समूह में हैं, जो वृद्ध आयु वर्ग में हैं, जिनकी अंतर्निहित स्थितियां हैं, गर्भवती महिलाएं, हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आपकी जोखिम श्रेणी के आधार पर 6 से 12 महीनों के भीतर अतिरिक्त खुराक प्राप्त कर रही हैं। इसलिए यह सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको बढ़ावा मिले, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको कब बढ़ावा मिला, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ वैक्सीन नहीं है, यह निदान और नैदानिक देखभाल के लिए प्रारंभिक पहुंच है। हमारे पास कई उपचार है जो गंभीर बीमारी के विकास को रोकता है लेकिन मरने से भी रोकता है। हमारे पास मास्क, रेस्पिरेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। हमें वेंटिलेशन में बेहतर सुधार की जरूरत है। जहां हम रहते हैं, हम काम करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ऐसे हस्तक्षेपों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो कोविड के लिए आवश्यक और उपयोग किया जाना जारी है। और फिर न केवल कोविड के लिए अच्छा है, बल्कि परिसंचरण में अन्य रोगजनकों के लिए भी अच्छा है। इसलिए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता था। हमारे पास कुछ प्रश्न है जो अफ्रीका के देशों से आने वाले डेटा का संदर्भ देते हैं। तो एक सवाल यह है कि अफ्रीकी देशों से डेटा कम है, क्या यह स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों के कारण हो सकता है? एक और सवाल है जो दिखाए गए नक्शे से कहता है, ऐसा लगता है कि अनुक्रमण अधिकांश देशों द्वारा नहीं किया जाता है। गाम्बिया जैसे देशों को इस क्षेत्र में कैसे सहायता दी जा सकती है? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहाँ कोविड-19 की मृत्यु दर सबसे अधिक है और स्वैच्छिक परीक्षण की सबसे कम दर भी है, हो सकता है लोरेंजो, मैं आपके साथ उस काम पर शुरू कर सकता हूँ जो WHO ने हमारे क्षेत्रों और देशों के माध्यम से और हमारे देश के भागीदारों के साथ अनुक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने पर किया है। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि निगरानी ब्लाइंड स्पॉट है, और मुझे लगता है कि मारिया, आप अपने प्रस्तुति
प्रस्तुति में उतर गए जब आपने दिखाया कि बहुत कम डेटा साझा किया जाता है। 6W2 क्षेत्रों में से 3 से अर्थात CRO, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र, और मुझे लगता है कि इसके लिए अलग अलग कारण हैं, जिनमें शामिल है डेटा साझा करने की इच्छा, लेकिन मेल भी है, विशेष रूप से अधिकारियों के लिए, निश्चित रूप से इसलिए भी है क्योंकि अनुक्रमण क्षमता है, लेकिन सुधार किया जा सकता है। यही कारण है कि हम इसके साथ काम कर रहे हैं। देशों के साथ और विशेष रूप से प्रयोगशालाओं के साथ भी क्षमता निर्माण गतिविधियों के साथ, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन निगरानी अंधे स्थानों पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करें। इसलिए मुझे लगता है कि हम यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इन वर्षों में हम यही कर रहे हैं। धन्यवाद लोरेंजो। और क्या आप इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं? मेरा मतलब है क्योंकि विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से अनुक्रमण कार्य वास्तव में उत्कृष्ट रहा है पिछले कई वर्षों में। And I would like you to comment on this, right? Because we're not in the same place we were. और आपने देश भर में निगरानी और विभिन्न क्षमताओं का विस्तार करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन यह पूरे महाद्वीप में भी हो रहा है और मुझे लगता है कि इसे उजागर करना महत्वपूर्ण है। These are capacities that need to be, this needs to be part of the legacy of COVID for the future. और मैं चाहता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें। सही है, क्योंकि हम उसी जगह पर नहीं हैं जहां हम 4 साल पहले थे। PCR प्रयोगशालाओं की मात्रा, अनुक्रमण क्षमता की मात्रा वास्तव में अविश्वसनीय है। सोमालिया के पास कोई PCR क्षमता नहीं थी इससे पहले कि वे परीक्षण कर सके कि वे अनुक्रम कर सकते हैं। ये ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें होना चाहिए। इसे भविष्य के लिए कोविड की विरासत का हिस्सा बनने की जरूरत है। निश्चित रूप से शायद उस स्तर पर नहीं जो हम महामारी के चरम के दौरान देख रहे थे, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा मतलब है दक्षिण अफ्रीका एक बहुत बड़े और विविध महाद्वीप के कई देशों में से एक, लेकिन क्या है इस पर आपके विचार क्या है? Not only looking for SARS-CoV-2, but looking for influenza, RSV, and other pathogens that are important for those countries. So I think there's been a tremendous amount of movement to try and improve this, and it's really happening. And sequencing even, I think sometimes we don't see that even just a few sequences from some of those countries, they are happening, and these countries are managing to sequence SARS-CoV-2 and now मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अफ्रीका के कई देश परीक्षण कर रहे हैं, PCR परीक्षण कर रहे हैं, और मैं वास्तव में इस अवसर का उपयोग अन्य श्वसन वायरस के परीक्षण के लिए गति के साथ कर रहा हूं, ताकि एक मानकीकृत तरीके से ऐसा करने की कोशिश करने वाले गिज़र्ड और सिंड्रोमिक निगरानी पर विचार किया जा सके, न केवल स्रोत कोड 2 की तलाश में, बल्कि इन्फ्लुएंजा की तलाश में, RSV और अन्य मार्ग जो उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि इसे सुधारने की कोशिश करने के लिए काफी हलचल हुई है और यह वास्तव में हो रहा है, और मुझे कभी कभी लगता है कि अनुक्रमण भी हो रहा है। और हम यह नहीं देखते हैं कि उन देशों में से कुछ अनुक्रम भी वे हो रहे हैं, और ये देश स्रोत कोविड 2 और अब अन्य श्वसन वायरस को अनुक्रमित करने का प्रबंधन कर रहे हैं। प्रशिक्षण की कोशिश में बहुत काम किया जा रहा है, प्रशिक्षण को बनाए रखने के लिए, ताकि हम अकेले काम न करें, ताकि हम एक साथ काम कर सके, क्योंकि हम में से कई संघर्ष करते हैं। हमारे पास स्टाफ टर्नओवर है, लेकिन फिर नए कर्मचारी आते हैं, हमारे पास मशीनें होती हैं, वे हमेशा काम नहीं करते हैं, लेकिन अफ्रीका के भीतर बहुत सारे नेटवर्क बनाए जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में एक अंतर पैदा करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी आशा यह है, महामारी की गति वास्तव में हमें कई अन्य बीमारियों के लिए आगे बढ़ने के साथ साथ स्रोत कोबुची की निगरानी करने के लिए आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी मीरा, क्या आप टिप्पणी करना चाहते थे या दौड़ना चाहते थे या अंत तक चढ़ना चाहते थे? लेकिन मैं आपको बंद होने से पहले कुछ और कहने का मौका देना चाहता हूँ। नहीं, मेरे लिए जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं। धन्यवाद भाई। मैंने विश्लेषक को बोलते समय आपको सिर हिलाते हुए देखा, इसलिए मुझे लगा कि आप वहाँ भी सहमत थे, तो यह बहुत अच्छा है। तो हम अंत में आ रहे हैं। यह घंटा है, 1 घंटा है। मुझे पता है कि हम शायद कुछ घंटों तक इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को अपनी अगली बैठकों पर आगे बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैरी चैन, प्रोफेसर और वॉन गॉटबर्ग, डॉ लोरेंजो सिबिसी, सिल्वी ब्रायन सुप्रिया के नेतृत्व में पूरी एबोएन टीम को धन्यवाद। हम आपको और पूरी टीम की सराहना करते हैं कि उन्होंने हमें इसे व्यवस्थित करने में मदद की और हमें इस बारे में बात करने का अवसर दिया। वास्तव में चुनौतीपूर्ण विषय, इसलिए आपके लिए वापस आ जाओ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मारिया, और धन्यवाद सिल्वी के लिए जो इस पर नेतृत्व कर रहा है, और इन सभी अद्भुत वक्ताओं के लिए, लेकिन उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने भाग लिया, और आपकी रुचि और बहुत दिलचस्प सवालों के लिए। और मुझे आशा है कि आप महसूस करेंगे आपकी कुछ चिंताओं और प्रश्नों को इस क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया है। मैं इस वेबिनार को संभव बनाने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर सुप्रिया और मारिया, डॉक्टर मीरा चांद, डॉ लोरेंजो सिबिसी, प्रोफेसर एन गोल्डबर्ग, EPI जीत टीम, वह मेरी सहयोगी प्रिया उमा चंद्रन है। पृष्ठभूमि में चैट का समर्थन और कर रहा कौन है? जियांग फंग लियू, जो हमें सभी तकनीक के साथ मदद कर रहा है। मुद्दे in Arabic,
Russian, Spanish. एक डॉक्टर इग्नेसी पास्टरीनी जिन्हें ब्रेक पर होना चाहिए था लेकिन फिर भी हमारी मदद करने के लिए शामिल हो गए हैं। सभी दुभाषी, हमारे पास दुभाषी हैं, अरबी में यूएस, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच और जाहिर है एआई बॉट्स के आयोजक भी। और अंत में हमारे आईटी सहयोगी, विशेष रूप से ड्रैगाना भी। लेकिन जैसा कि मारिया ने उल्लेख किया है, आपको हमारी वेबसाइट पर सभी भाषाओं में रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी और आपको विषय पर इस वेबिनार का सारांश वाचन भी मिलेगा। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो कृपया EpiPen ईमेल में लिखें और आप भी करेंगे। We have some exciting webinars coming up. The next one is on vaccines for seasonal influenza and zoonotic influenza, followed by infection control and prevention and control. हम जो कुछ भी करते हैं उसका सारांश प्राप्त करें, इसलिए अक्टूबर में भी हमारे पास कुछ रोमांचक वेबिनार आ रहे हैं। अगला मौसमी इन्फ्लुएंजा और जूनोटिक इन्फ्लुएंजा के लिए टीकों पर है। इसके बाद संक्रमण नियंत्रण होता है, इबोला और मारबर्ग के लिए रोकथाम और नियंत्रण। तो कृपया हमसे जुड़े। आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक है और शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। अलविदा।